which is based on facial recognition and application of pattern recognition by Engineer Mohammad Awais, Assistant Professor at DHSFY University, Electrical Engineering Department. We are glad to have him on board today, and we are thankful, sir, for your presence. We'll start proceedings officially by recitation of some verses from Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العلي العظيم. I welcome all of you to today's session. We have participants from all across Pakistan and even from outside Pakistan, especially from Malaysia, Qatar. We have participants from India and even Iraq. So without any further ado, I would like to hand over the stage to Engineer Mohammad Awais for the proceeding of the seminar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome and hello to this session on facial recognition. And this is Engineer Mohammad Awais, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering. So I hope you all are able to see me, to see my screen. Please let me know if there is anyone who is not able to see me. Maybe students or the participants can raise their hands in case they are not able to hear me or if they are not able to view the slides. Sir, kindly again share your screen, sir. Sure. Just a moment. So now, can you see that? Yes, sir, it is visible. Okay, so let's proceed. Thank you so much for being with me. It's my honor to have you all with me for this session. So before I actually start this session, I would like to thank all the concerned departments, Department of Electrical Engineering here at DHSFY, and the departments in PF KEET as well, the student bodies from both the universities, IEEE DSU student branch and IEEE PF KEET branch, and to Karachi section as well for arranging these kind of technical activities. So I think now it's the time we start on with our topic. So before actually we get into the details, I would like to tell you that there are different topics, there are different techniques through which facial recognition problem can be improved. But today we are going to have a look at one of the basic face recognition algorithm that is called the PC eigenfaces method. Because the target of this
technical webinar is actually to introduce students, particularly the BE students or the undergrad students, towards facial recognition and towards the areas of pattern recognition and machine learning. I am actually a researcher in the area of control system primarily, but it's my another area of interest in which I occasionally work. So it's my honor to share my experience with you. So detailed discussion on PCA eigenfaces method will be provided here to all of the participants. And then towards the later part or towards the end of this session, the technique based on CNN will also be briefly discussed with you. But please remember that the main concern or the main target of this session is towards the PCA eigenfaces. And what is PCA eigenface and what is the technique? We shall discover that in this session, inshallah. Okay, now let me introduce our team. Myself, Mohammad Wes, and then we have Engineer Anas bin Iftikhar, my colleague from DHA SOFA. It has been an honor to work with him and my other students who are actually there was some, by mistake, I was being muted, but I hope now you can hear me. Can anybody please confirm that they are able to hear me? Yes, sir. Anyone? Thank you so much. Thank you so much. Okay, then we have Engineer Moiz Hassan, Engineer Erin Amir Jalal, and Engineer Amara Sheikh. So these are our group members of research team. And today I have on board with me Engineer Erin, who shall be actually taking on the second part of this presentation. That is the brief introduction about CNN-based facial recognition technique. So now before actually going into the facial recognition, as you can hear from the title, an application of pattern recognition, being an electronic engineer and electrical engineer, there are many students who are not actually exposed to this area of research, the machine learning or the pattern recognition. Towards the later part, like these days, we still find some courses related to machine learning, but in some universities, some institutes, the courses are missing. And that's why it's important to actually first provide an introduction towards pattern recognition. And then we will be able to actually relate the work that has been done using PCA method with the pattern recognition. So this is an overview and outline of what we are going to discuss today in this session, inshallah. Okay, so these are the material citation. Various resources have been used and the references have been provided. I'm extremely thankful to one of my PhD teacher, assistant professor, Commander Rana Hamad Raza from PNEC NEST, Pakistan Navy Engineering College NEST, who has been very kind to us during the course, and it has been an honor to learn from Sir Dr. Rana Hamad Raza. Okay, so let's begin with this topic of pattern recognition. We are going to have a brief introduction about what pattern recognition is and how we are going to relate pattern recognition with our face recognition work. So as you know that that these concepts of machine learning, they are actually coming from humans or from nature. As you can see, a human, when a baby is born, he or she is not actually able to do everything, or a very limited data set or very limited set of function. So what happens is that he or she learns from the experience, from the daily life experience. Even it applies on adults as well. It takes sometimes you go through various patterns, you go through various situations, and then you are able to learn what is right, what is wrong, and how to take the right decision. Okay, so for instance, if you want to memorize something to a student or to a kid, or you want to tell them how to do a certain thing, you will actually, the better part is, or the better idea is to expose the kid to that problem, that situation, and there the learning from that will be actually quite robust, and he or she will then be able to take right decision, appropriate decision in future based on the learning that he or she has done from the previous experience. So this property, this is inherent actually in humans from nature, and these capabilities keep on increasing as we are exposed to more and more learning opportunities.
But when you talk about machines, machines do not have these learning abilities. So what you need to do is you need to train your machines. You need to train them just like you are training an adult. The machine needs to learn from the algorithm and then maybe then predict outcomes as accurately as possible. So occasionally before I move on to the next slide, occasionally I have been generally most of the time I receive the request that the students generally want to actually have the session in Urdu. So is there anyone who is not comfortable with Urdu as a communication medium? So if there is any participant, I would like the participants to raise their hands if there is anyone who is not able to understand Urdu, because we are more concerned towards the BE students as compared to other students. The idea is to introduce this area to students and for them to make it as easy as possible. So यहाँ पे कोई ऐसा student है who is not comfortable with Urdu as communication medium? So I request the host if he is able to find anyone. I think no one, sir. raised. Okay, so maybe we can continue with Urdu so that it is comfortable for all of you. ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे बात कर ली लर्निंग की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने मशीन को लर्न कराना है, ठीक है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन या मशीन लर्निंग के अंदर जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका रोल आता है पैटर्न रिकॉग्निशन का या मशीन लर्निंग का व्हेन यू आर डीलिंग विद द मशीन्स। तो आपको करना ये होता है कि आपको वो एल्गोरिथम्स अपनी मशीन को लर्न कराने होते हैं, ठीक है। सो द टारगेट इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आपकी इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप वहाँ पे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखते हैं कि एक ये गाड़ी है या एक ये सीट है, तो वो द पर्सन शुड बी एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई और साथ साथ उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सके उनसे फीचर्स क्या चीज़ें, इसके ऊपर हम अभी आते हैं। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो आपको मालूम है गाड़ी की एक सर्टेन शेप होती है, ठीक है। सो डिफरेंट होती है, हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं, आपके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ से पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट से मुराद यहाँ है कि अगर हम गाड़ियों में डील कर रहे हैं तो आप सराउंडिंग में अगर एक रोड है तो वहाँ पे आप गाड़ी को अलग से रिमूव कर सकें और उसके बाद फिर आप पॉसिबल डिसीजन ले सकें कि फॉर इंस्टेंस कि दिस इज अ 4x4 और इट इज जस्ट नॉर्मल कार, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना सी टुडे इन दिस वर्कशॉप। सो अगर आप पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न हम किसी भी ऐसी एंटिटी को कहते हैं जिसको आप डिफाइन कर सकें प्रॉपर्ली बाय गिविंग अ नेम। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करते हैं ह्यूमन फेस इज अ पैटर्न एज यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे फेस नहीं दिखाया गया बट फॉर इंस्टेंस यू कैन सी मी, तो दिस फेस माई सेल्फ, इट्स माई फेस इज एक्चुअली अ पैटर्न। आप देखते हैं कि यू हैव एवरी ह्यूमन हैज 2 eyes, यू हैव अ नोज, यू हैव कॉमन फीचर्स, सो देयर इज अ पैटर्न एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। फिंगरप्रिंट इमेज में आप देखते हैं वहाँ पे पैटर्न है, हैंड रिटन वर्ड्स के अंदर यू हैव अ पैटर्न। सो एक सर्टेन पर्सन की राइटिंग स्टाइल को आप एनालाइज कर सकते हैं। डीएनए पैटर्न की बात करते हैं, दैट इज अ पैटर्न। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे इट इज एक्चुअली हम ये स्टडी करना है कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उससे लर्न करना है कि ओके जी हमने ये इन्वायरमेंट देख लिया। फॉर इंस्टेंस अगर हम फेस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपने अपने सिस्टम को ट्रेन कराना है कि किस तरीके से उसने फेस को डिटेक्ट करना है और फेस को कैसे आप एक्चुअली बता रहे हैं, किन किन पैरामीटर्स, किन फीचर्स के जरिए आप अपने फेस को डिफाइन कर रहे हैं। एंड जब एक दफ़ा आपने ये ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है, यू हैव टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेटर ऑन, कि अगर बाद में अगर आपने किसी पर्सन को डिटेक्ट कराना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रेनिंग। सो देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट यू ट्रेन, आप अपने एल्गोरिथम सिखाते हैं मशीन को और उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। फॉर इंस्टेंस अगर आप फेस में बात करते हैं तो इफ यू हैव अ डेटा सेट जिसको हम आज देखेंगे इंशाल्लाह, तो जो अब आपके पास एक टेस्ट इमेज आ रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू टेक द डिसीजन कि ये चेहरा किस पर्सन से रिलेट करता है। डज इट रिलेट टू मोहम्मद उवैस, डज इट रिलेट टू मिस्टर एक्स और मिस एरिन फॉर इंस्टेंस, ठीक है। सो दैट वी शैल सी टुडे। डेफिनेशन बात करते हैं तो बुक के अंदर डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती हैं, कुछ मैंने आपको हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट और इवन टू वन ऑफ सेवरल प्री स्पेसिफाइड कैटेगरीज। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने फेस रिकॉग्निशन इशू के साथ। तो जब हम फेस के अंदर आप बात करते हैं
तो आपके पास हर जो पर्सन है वो एक कैटेगरी है, वो एक क्लास है, ठीक है, कि मोहम्मद उवैस की क्लास है। तो अब आप कि जब आपको एक टेस्ट इमेज को लेंगे, कोई एक फेस लेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको असाइन करना होगा कि ये फेस किस कैटेगरी में लाई करता है, यानी कि किस इंसान का है, मोहम्मद उवैस का है या किसी और का है, ठीक है। सिमिलरली दूसरी डेफिनेशन में भी ये चीज आपको होगी जिसमें लर्निंग आपको बताई जा रही है कि गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स एंड द करेक्ट डिसीजन फॉर देम, क्योंकि आपने पहले करेक्ट डिसीजन सिखाने हैं मशीन को, जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं हर बच्चे को सिखाने के, अब सिखाते हैं उसके बाद मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली फॉर अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर एग्जांपल्स। जब छोटा बच्चा सीखता है तो उस वक्त क्या होता है, आपके पास आप उसे सिखाते हैं कि बेटा ये देखिए कि दिस इज अ पेंसिल, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, आप कई बार सिखाते हैं, उसे लर्न कराते हैं। उसके बाद जब वो एक दफा लर्न कर लेता है तो ही और शी दैट पर्सन इज एबल टू टेक डिसीजन ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर। सो आई होप इससे आपको थोड़ा एक आइडिया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं पैटर्न रिकॉग्निशन की, ठीक है। आप रेफरेंसेस जो मैंने प्रोवाइड किए वहाँ पे आपको ये तमाम टेक्स्ट मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। सो डिफरेंट कैटेगरीज है जिनमें पैटर्न रिकॉग्निशन में काम होता है, ठीक है। सो मेडिकल साइड के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बायोमेट्रिक में बात करते हैं तो आपके पास आइरिस है, आपके पास फिंगरप्रिंट्स हैं, आपके पास फेस है। आप स्पीच रिकॉग्निशन में बात करते हैं, आप इसकी डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि OCR को यूज करते हुए किस तरीके से एक रिटन जो हैंड रिटन है उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर फाइनाइट areas in which you find application of pattern recognition, particularly with advancement of new machine learning techniques. So आज जो हम जिस एप्लीकेशन की बात करें दैट इज बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन, और बायोमेट्रिक में भी हम बेसिकली फेस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बायोमेट्रिक की कुछ मैंने, ठीक है। सो देयर कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, वी शैल बी डीलिंग विद फेस रिकॉग्निशन। आप इसी तरीके से आपने स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स नंबर प्लेट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि नंबर प्लेट्स को डिटेक्ट करना है और उसके बाद यू कैन टेक बेसिकली डिसीजंस, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा बहुत सारी हैं आपके पास एप्लीकेशंस, कुछ मैंने आपको यहाँ दिखाई है। हैंड राइटिंग को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है फेस जो फिंगरप्रिंट का डाटा है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए जी, अब देखें इट वाज क्वाइट इजी कि अगर हम डायरेक्ट फेस रिकॉग्निशन पे बात कर चले जाते, लेकिन हम रेलेवेंस नहीं बना सकते थे कुछ चीज़ों की। मेरा मकसद आपको सिर्फ फेस रिकॉग्निशन के ऊपर लेकर नहीं आना है। फेस रिकॉग्निशन इज जस्ट एन एरिया ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न रिकॉग्निशन की तरफ आपको इंटरेस्ट डेवलप कराना है, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स होते हैं देयर आर सम मिसकंसेप्शंस एट टाइम कि आपने एक सर्टेन एरिया के अंदर ही काम करना है, एंड a certain area belongs to another department or another field of interest, so that's not like that, ठीक है। So even with your electronics electrical background or the mechatronics background, you can work on pattern recognition, machine learning and different areas. So let's have an example of fish processing plant. ये बड़ी एक मशहूर example है। आप अगर machine learning की pattern recognition की एक अच्छी बुक है from Duda and Hart जो मैंने references में provide की हुई है, बेसिकली वहां से ड्राइव्ड है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ हो क्या रहा है हमारे पास, सो इसमें हमारे पास क्या है कि वी हैव अ प्लांट जिसमें हमारे पास यहाँ पे, इफ आई कैन शो यू, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, या सो दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट जिसके ऊपर आपके पास डाटा आ रहा है, ठीक है जी। और डाटा में क्या है आपके पास, बेसिकली आपके पास फिश आ रही हैं, और वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर ओनली हैविंग टू काइंड ऑफ फिश, वन इज द सैल्मन एंड द अदर इज सी बेस, ठीक है। और ये आपके पास आप देख सकते हैं दो डिफरेंट कलर में आपको दिखाई हुई है। एंड नाउ वी हैव टू कैटेगराइज, वी हैव टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ फिश, और अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन लेने, इनको सेपरेट करने फॉर सेपरेट पैकेजिंग, ठीक है। आजकल ये काम ऑटोमाइज हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है कि आप किस तरीके से इनको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमने दी है वो पैटर्न रिकॉग्निशन की दी है। सो यू हैव अ कंप्यूटर विजन सिस्टम। अगर आप इस ऑटोमेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये कैमरा है जिसकी बेसिस के ऊपर हम CV कंप्यूटर विजन की कुछ मेथड्स लगाकर इसको डिटेक्ट कर रहे होंगे। एंड वंस दिस इमेज हैज बीन, दिस इमेज ऑफ द फिश हैज बीन डिटेक्टेड, वी हैव अ कंप्यूटर जिसके अंदर हमने अपने लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप किया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस रोबोटिक आर्म। सो द आर्म, रोबोटिक आर्म विल टेक द डिसीजन एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है जी। तो कंप्यूटर की तरफ से सिग्नल आना है कि आपने इस फिश
को लेफ्ट पे करने हैं या राइट पे करने हैं। आप बस कन्वेयर बेल्ट पे सैल्मन होगी और दूसरी तरफ यू शैल हैव द सी बेस। अच्छा जी, सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक फिश आ रही है हमारे पास एंड वी टू सॉल्व फिश अकॉर्डिंग स्पीशीज। ऐसा चाहिए कि उनकी तरफ आ रही हो, सी बेस भी वहीं आ रही हो, दोनों अलग अलग हमने करनी, ऑटोमेट करने सिस्टम को। हमने अजम्पशन शुरू से यही लिया कि हमारे पास सिर्फ वी हैव ओनली टू काइंड ऑफ द फिश, द सी बेस एंड द सैल्मन। ओके जी, सो अब हमारे पास जो डिसीजन साइकिल है या डिसीजन जो प्रोसेस है वो क्या है उसको जरा देख लेते हैं। डिसीजन प्रोसेस में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको डिसीजन लेना होगा। सो ये कोई क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट द आंसर्स। सो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसकी बेसिस के ऊपर हम इनको सेपरेट कर सकें, हमें पता चल सके कि ये दिस इज सी बेस एंड दिस इज सैल्मन, क्योंकि हम सिस्टम को ऑटोमेट करा रहे हैं, मशीन लर्निंग के जरिए करा रहे हैं काम, ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। सिमिलरली देन क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास सेंसिंग के दौरान, ये कंप्यूटर विजन का एरिया आता है बेसिकली, जो इश्यूज आते हैं सेंसिंग में उस पर हम नहीं जा रहे होंगे आज, लेकिन मैं इस ऑटोमेशन को आपको एग्जांपल को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। एंड प्रोसेसेस क्या होंगे हमारे पास ओवरऑल। सो अगर आप इंफॉर्मेशन में बात करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स वी नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन, वी कैन यूज इंफॉर्मेशन लाइक द लेंथ ऑफ द फिश, द विड्थ ऑफ द फिश, द नंबर, शेप ऑफ एटसेट्रा, ठीक है। और इश्यूज क्या आ सकते हैं हमारे पास, ऑब्वियसली लाइटिंग कंडीशंस हो सकती हैं, पोजीशन हो सकती है, कन्वेयर पे फिश प्रॉपर पोजीशन पे आई है या नहीं आई है, उसके लिए नेसेसरी आप डिसीजन लेने होंगे, पहले को अरेंजमेंट करनी होगी, ठीक है। कैमरा नॉइज अगर आ रही है तो उसे कैसे ओवरकम करना है, बेसिकली प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर विजन की टेक्निक्स को यूज करके आपको ओवरकम करने होंगे। सो अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ब्रीफ समरी है कि हमने करना क्या होगा। वी हैव टू कैप्चर द इमेज, इमेज कैप्चर करने के बाद फिश को आइसोलेट करना होगा कि एक यानी एक सिर्फ एक फिश आ रही हो, यू हैव टू मेक श्योर कि एक फिश अलग से आ रही है, यू हैव टू टेक मेजरमेंट्स एंड देन मेक डिसीजंस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस इंट्रो को थोड़ा जल्दी से आगे स्किप करूँ सो दैट हम फेशियल रिकॉग्निशन के टॉपिक के ऊपर आ सकें। सो प्लीज बेयर विद मी, मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड की जाए और हम बिल्कुल एक ब्रीफ बात ना करें, टेक्निकल टर्म्स में बात करें और आपको एक पूरा कंसेप्ट हो जाए कि व्हेन यू आर डन विद दिस सेशन you have some valid information that you can actually apply. So for instance, if we let's get back to this example, this problem. For instance, we know that the length of for instance sea bass is it's longer than a salmon, ठीक है जी। तो हमें ये पहले से पता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन वी नीड प्रायर इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का बहुत काम होता है, आप जब भी स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और जब भी आप मशीन लर्निंग पैटर्न रिकॉग्निशन साइड में आते हैं तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होते हैं आपके पास। So let's assume that we know that कि sea bass is longer. तो अब हम for instance अब इसको as feature के तौर पे ले सकते हैं। Pattern recognition के दो काम है students, sorry participants, some of you may be students, some of you may be pass out and graduates. So दो problem है हमारे पास। The first is called identifying the features. You have to extract features from the data. किस वो कौन सी information है that you are going to use. And the second part is to take necessary decision, ठीक है, कि ये सैल्मन है या सी बेस है, उसके लिए हम डिसीजंस लेते हैं। वहां पे इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। वी यूज सम क्लासिफायर्स दैट इंश्योर्स कि करेक्ट डिसीजन हैज बीन टेकन, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड। सो अगर हम कहते हैं कि हम सिर्फ लेंथ को यूज करते हैं एज अ फीचर, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डाटा आता है, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी बेस जो है यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लैक है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सैल्मन। काउंट वाई एक्सिस पे आपके पास काउंट है और एक्स एक्सिस पे आपके पास लेंथ के फीचर है। तो ये एल स्टेरिक जो लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली द पॉइंट जहां पे हमने बेसिकली डिसीजन लेना है, दैट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि अगर एल स्टेरिक से वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे कि सी बेस है और अगर एल स्टेरिक से कम है तो हम कहेंगे सैल्मन है। लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा सी बेस विल बी मोर इन लेंथ एज कम्पेयर टू सैल्मन। यानी मैं कह रहा हूँ सी बेस जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा उसकी लेंथ ज्यादा हो। ओकेजनली देयर आर चांसेस कि कुछ फिश जो होंगी वो आपके पास उनकी लेंथ हो सकता है कि सैल्मन या जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू आपने सेट की उससे कम हो। सो हियर यू सी द ओवरलैपिंग इज देयर, इनफैक्ट अ लार्ज ओवरलैपिंग इज देयर। तो दिस इज नॉट प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं इसको रिलेट किस तरीके से कर रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि नहीं
अब हमने लेंथ के बेसिस पे कर लिया। अब लेट्स सपोज हम लाइटनेस इज अनदर पैरामीटर, इज अनदर फीचर, तो लाइटनेस के बेसिस के ऊपर भी हम डिसीजन ले सकते हैं। सो लाइटनेस के बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की है, वो आपको यहाँ नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रेड है, ये आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा काउंट नजर नहीं आ रहा, जो पहले आपके पास काफी ज्यादा अब कम हो चुका है। सो मे बी अगर आपको सिर्फ एक फीचर लेना है, यानी ओनली you have to take the decision on the basis of a single feature, then maybe lightness is much better than the length. But still, even with lightness, there are chances that you may be taking some incorrect decisions. इसको मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से। So for instance, हमारे अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना, I was having a discussion with one of my student today कि how do you classify a good student, or how you define a student who is good. So there are different points. या अगर कोई इवेल्युएटर है, वो किसी सीवी को देख रहा है, तो वो क्या सिर्फ एक फीचर के ऊपर लेता है इंफॉर्मेशन, या वो मल्टीपल लेता है? ठीक है, जब आप सीवी अपनी भेजते हैं आगे, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट योर सीजीपीए. सो इफ सीजीपीए ओनली अलोन may be used कि जिनकी सीजीपीए अच्छी है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट देयर आर चांसेस कि ये डिसीजन गलत भी हो सकता है. ठीक है, मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लैकिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स even when they have good GPA. ठीक है, so this is a debatable point. Let's not get into the complexity of this issue. I'm just trying to give you some example कि आपको तमाम करेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी. आपने 2-3 फीचर्स को जनरली हम यूज करते हैं कि आप सीजी पे यूज कर ली, आपने उनके प्रैक्टिकल स्किल्स यूज कर ली, आपने उनकी प्रोफाइल में बच्चे फीचर्स देखें. ठीक है, एंड देन यू आर एबल टू टेक अ मच बेटर डिसीजन. सो माय पॉइंट हियर इज दिस, दैट अगर आप सिर्फ एक फीचर को यूज करते हैं, देयर आर चांसेस कि आप गलत डिसीजन ले लें. ठीक है, सो जनरली हमारे पास वी टेक मल्टीपल फीचर्स. सो फॉर इंस्टेंस हम लाइटनेस और विड्थ दोनों को मिलाकर यूज कर सकते हैं. तो देन लाइटनेस एंड विड्थ दोनों की इंफॉर्मेशन को हम यूज करें और उसकी बेसिस के ऊपर वी शैल बी क्लासिफाइंग. तो ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए मेरे पास, दीज आर डिफाइंड एज माय फीचर्स. ये वो फीचर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मैं अपने सिस्टम को, एल्गोरिथम को लर्निंग करवाऊंगा. ठीक है, सो उसने लाइटनेस चेक करनी है, उसने विड्थ चेक करनी है, और टुगेदर दीज टू व्हेन यू राइट देम इन अ वेक्टर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड द फीचर वेक्टर. यहाँ पे आपके पास 2 फीचर हैं, तो ये जो स्पैन होगा इनका फीचर स्पेस का, दैट विल बी अ 2 डायमेंशनल स्पैन. जैसे जैसे फीचर्स बढ़ाते जाएंगे डायमेंशनलिटी बढ़ती जाएगी. हायर डायमेंशनलिटी पे जाने के अलग चैलेंजेस हैं, वहां पे हम आज नहीं आ रहे हैं. अब यहाँ पे आप देखें, अब ये हमारे पास, और यहाँ पे देखें डिसीजन, ये जो आपको बीच में लाइन नजर आ रही है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. ये देखिए जो आपके पास ब्लैक लाइन है, दिस इज बेसिकली द डिसीजन बाउंड्री. ये बताता है कि आपके पास क्लासिफाई कर रहा है कि लेफ्ट साइड के ऊपर सब सेलमन है और राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या है, दिस इज सी बेस. और आप देख सकते हैं यहाँ कंपैरेटिवली हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स हैं. ऑल्दो यू कैन स्टिल सी कि देयर आर सम आउटलायर्स, कि कुछ आपके पास सेलमन सी बेस में नजर आ रही है और कुछ आपके पास सी बेस सेलमन में नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन. इट कैन बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर इंस्टेंस. ठीक है, सो अगर आप ये चाहते हैं फॉर इंस्टेंस ये जो आपको कुछ आउटलायर्स नजर आ रहे हैं दोनों साइड पे, इनको आप चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए. फॉर दैट यू नीड टू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डिसीजन बाउंड्री. दिस इज कॉल्ड द डिसीजन बाउंड्री और द क्लासिफायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली डिसीजन बाउंड्री, कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए. ठीक है, और ये एक हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल की तरफ जा रहे हैं. तो लेट्स स्टिक विद दिस. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत बेहतर, रिमेंबर ये जितना भी डेटा पार्टिसिपेंट्स, दिस इज फ्रॉम आवर ट्रेनिंग डेटा सेट. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने तमाम डेटा सेट प्रोवाइड किए और उसकी बेसिस के ऊपर ये लर्न किया उसने. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा हो टेस्ट में जैसे आपके पास यहाँ पर हो. सो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आपको, लेकिन वो बहुत जेनरिक नहीं रहेगा आपके पास. ठीक है, सो जेनरिक से मुराद ये है कि आपके पास जब एक टेस्ट आएगा रैंडम, चांस आर दैट कि वो majority of the test images may not be correct decision may not be taken for those. At times बहुत ज्यादा complex decision boundaries को avoid करते हैं या उसकी advanced techniques के ऊपर आते हैं. So a good compromise for instance can be this decision boundary जो आपने यहाँ देखे. So इनकी पूरी आपको डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है. देयर आर डिटेल इक्वेशंस, देयर आर डिफरेंट मेथड्स. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. नाउ इट्स द टाइम टू मूव ऑन टू आवर एप्लीकेशन. सो आई होप आपको यहाँ से 2 चीजें पता चल गई हैं
कि हमें रिपीट करना, दो काम करने, वी हैव टू डू 2 स्टेप्स. द फर्स्ट इज टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स. यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में हमने कौन से दो सेट्स किए थे, कौन से दो फीचर्स थे, लेंथ एंड विड्थ. ठीक है जी. और हमने एक डिसीजन लिया था, ये डिसीजन यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाया गया था. ठीक है, दिस कैन बी थ्रू सम इक्वेशन व्हिच विल बी इन टर्म्स ऑफ x1 or x2, for instance, where x1 may be the width and x2 may be the lightness. So now we move on to our application. Application से थोड़ा देख लेते हैं. I think ये चीज मैं मिस कर गया था. This is the workflow. आप देख सकते हैं. This is काफी आपको आसानी से चीज समझ में आ जाएगी. वही चीजें जो हमने बात की हैं. सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ट्रेन कराना पड़ता है, जो आपको on the right side of your screen you can see that. So training data. ठीक है, जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं कि सीखो. प्री प्रोसेसिंग, एट टाइम्स यू मे नीड सम प्री प्रोसेसिंग, कि आपको फॉर इंस्टेंस अगर फेस को प्रोवाइड करना है तो फेस में बैकग्राउंड रिमूव करना है, फॉर इंस्टेंस सेगमेंटेशन करनी है, डाटा में से सिर्फ फेस को रिमूव करना है, सो यू मे नीड सम प्री प्रोसेसिंग. एंड देन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स. अब हम देखते हैं फीचर्स किस तरीके से. ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. आज का जो हमारा मेथड है वो पीसीए है, बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. वी शैल सी के किस तरीके से हमने करना है. ओके जी, वंस यू हैव द फीचर्स, through these features you actually train your system. ठीक है, your system learns and a model is obtained. आपके पास एक मॉडल आ चुका है and that model is saved. अब अगर आप टेस्ट में आते हैं तो this on your left side is towards the test. So आपके पास कोई random data आता है. ठीक है, आप data acquire करते हैं, for instance through a camera. Data acquisition की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप कैमरा के जरिए से एक तस्वीर लेंगे. प्री प्रोसेसिंग की आपको जरूरत हो सकती है कि आप फेस, सिर्फ जो फेस का एरिया है उसको रिमूव करें डाटा से, एंड देन एक्सट्रैक्ट फीचर्स आउट ऑफ इट. वंस यू हैव द फीचर्स ऑफ द टेस्ट इमेज, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ क्लासिफायर. ठीक है, अ क्लासिफायर विल डिसाइड कि ये जो टेस्ट इमेज है दिस मैचेस विद इमेज ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी टेकन. ओके जी, हो सकता है आप थोड़ा सा, आई होप थोड़ा आप बोर ना हो गए हो. यहाँ पे अभी तक हमने पैटर्न रिकॉग्निशन की बात की है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पॉइंट को रिलेट कर सकें. बेसिकली मेरा खुद भी अपना इंटरेस्ट हुआ आफ्टर पैटर्न रिकॉग्निशन ही हुआ है. सो आई स्टडीड अ कोर्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड उसके बाद माय इंटरेस्ट डेवलप टुवर्ड इन दिस एरिया. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन फेस रिकॉग्निशन. तो जब हम फेस रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये फेस डिटेक्शन. अच्छा, प्रॉब्लम पे आने से पहले वी नीड टू नो क्या इश्यूज क्या है यहाँ पे. Is face detection is face recognition the same? क्या ये सेम है? तो आंसर टू दिस इज नो, दे आर डिफरेंट. ठीक है, फेस डिटेक्शन जनरली जब आप एक पूरे सोल्यूशन में आते हैं तो दोनों चीजें एक साथ आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप किसी एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो ये दोनों अलग अलग है. फेस डिटेक्शन की अलग टेक्निक्स है, फेस रिकॉग्निशन की अलग टेक्निक्स है. आज का जो हमारा कंसर्न है वो फेस रिकॉग्निशन के ऊपर है. डिटेक्शन के ऊपर फिर हम किसी और वक्त मौका मिले तो बात कर सकते हैं. फिलहाल हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन पे बात करेंगे. ठीक. So now after face recognition, this has been identified that we need to work on face recognition. We need to know कि जो आपके पास इमेज आ रहा है, टेस्ट इमेज, कोई भी रैंडम इमेज है, वो आपके डेटा सेट में से किसका है, और अगर किसी का भी नहीं है तो उसको किस तरीके से आपको डिस्कार्ड करना है. ठीक है, सो इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट जगह आपको मिलती है. आप अटेंडेंस सिस्टम के ऑन अटेंडेंस कोई हार्डवेयर सेटअप के जरिए से आप वंस यू एक्वायर द faces of the students, then you can decide कि ये कौन सा स्टूडेंट है और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं. मे बी कुछ और जगहों पे सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफिस के अंदर, सेंसिटिव एरियाज के अंदर, जहाँ पे आपको ऑटोमेट करना है, जहाँ पे आपको सिक्योर करना है सिस्टम के, ओनली जो ऑथराइज्ड पर्सनल है वो आ सकें. ठीक है, तो फेस का डाटा आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है जी. सो यहाँ हर प्रॉब्लम के साथ, हर रिसर्च प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जब आप फेस रिकॉग्निशन में आते हैं, कुछ आपके पास चैलेंजेस हैं. उनमें से यहाँ हाईलाइट हुए हैं, पोस्चर है, ऑक्लूजन है, इल्यूमिनेशन ऑन अपीयरेंस है. एंड प्लीज रिमेंबर कि हर टेक्निक की देयर आर लिमिटेशंस टू ईच एंड एवरी टेक्निक. ठीक है, कुछ आपके पास एडवांस टेक्निक्स है, कुछ बेसिक है. आज हम एक बेसिक टेक्निक की बात कर रहे हैं. सो वंस यू गेट to know this basic technique, and if you are able to actually implement this system, बेसिकली जो रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप अपने सिस्टम के ऊपर खुद काम कर सकते हैं. ठीक है, वर्क ऑन दैट एंड देन मे बी यू कैन मूव ऑन टू सम मोर एडवांस टेक्निक्स. ओके जी,
सो वर्कफ्लो की अगर हम बात करते हैं किसी भी फेशियल रिकॉग्निशन की ओवरऑल वर्कफ्लो में, तो यू हैव टू एक्वायर द इमेज, बिल्कुल जैसे हमने पीछे पैटर्न रिकॉग्निशन में बात की थी. वंस यू हैव द इमेज, यू हैव टू डिटेक्ट द फेस आउट ऑफ द इमेज, ठीक है. एंड वंस यू हैव द फेस इमेज, यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर द फेस मैचेस समवन इन द डाटा सेट और द फेस नीड्स टू बी रिजेक्टेड. और आज के वेबिनार के अंदर जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, या जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं, दैट इज फेस रिकॉग्निशन. सो फेस रिकॉग्निशन के ऊपर हम डिटेल में आ रहे हैं. फेस डिटेक्शन फॉर इंस्टेंस, ये आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है. तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेसेस इन द इमेज एंड देन सेपरेट दिस डाटा फ्रॉम द अदर इंफॉर्मेशन. सो दिस इज बेसिकली फेस डिटेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है. एंड फेस रिकॉग्निशन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर द फेस बिलोंग्स टू अ नोन फेस और इट डजंट बिलोंग टू एनीवन, ठीक है. सो रिकॉग्निशन एल्गोरिथम कौन से है उसको अभी हम देख लेते हैं. ये कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड रिसर्च है जो पहले बहुत से लोगों ने इस एरिया में की हुई है, ठीक है. अब बात करते हैं तो आपके पास डीप फेस है जो फेसबुक ने टेक्निक प्रोवाइड की, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, विच वाज एक्चुअली प्रेजेंटेड बाय टर्क एंड पेटलैंड, ठीक है. इसकी जो बेसिक काम था वो आपके पास यहाँ पे सिरोविच एंड किर्बी ने किया था, जो उन्होंने इनिशियली पीसीए का कंसेप्ट दिया था और उस पीसीए की टेक्निक को पीसीए को इम्प्लीमेंट किया था बेसिकली ह्यूमन फेसेस के ऊपर टर्क एंड पेटलैंड ने, ठीक है. चलिए जी, लेट्स गेट टू आवर मेन टॉपिक, सो टू आवर एल्गोरिथम. सो फेस रिकॉग्निशन यूजिंग पीसीए आइगन फेसेस. पीसीए है क्या? देखिए इस वेबिनार के अंदर द आइडिया इज टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू, ठीक है. इट मे नॉट बी पॉसिबल कि आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, ठीक है. यू नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन इट, ठीक है. अब पीसीए के ऊपर मजीद डिटेल आप देख सकते हैं. मैं आज हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन फेस पे कैसे की थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बेसिकली इट इज अ टेक्निक यूज फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन. जैसे पीछे आपने बात की थी तो दो फीचर्स थे आपके पास, ठीक है. सो आपके पास लेंथ थी और विड्थ, सॉरी लेंथ और लाइटनेस. सॉरी मैं पीछे भी एक दो बार विड्थ कह चुका हूँ. दैट एक्चुअली रेफर्स टू लेंथ एंड लाइटनेस. और चाहे तो आप विड्थ की भी बात कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने कौन सी यूज की है. लेकिन एट टाइम्स आपके पास फीचर्स इतने ज्यादा हो सकते हैं या आपके पास डेटा जो है वो बहुत डेटा सेट बहुत बड़ा हो सकता है एंड इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द डेटा. सो वहाँ पे आपको डायमेंशनलिटी रिडक्शन की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं. और डायमेंशनलिटी रिडक्शन आपको इस तरीके से करनी होती है कि इंटरप्रिटेशन भी आसान हो सके लेकिन साथ साथ डेटा का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे जो बेसिक टेक्निक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की, वो बेसिकली यही काम करती है कि इट प्रोवाइड्स यू अ लोअर डायमेंशनलिटी सोल्यूशन टू हाउ टू रिड्यूस डायमेंशनलिटी एंड सेम टाइम मिनिमाइजिंग द इंफॉर्मेशन लॉस. आइडिया बहुत सिंपल है. आपने करना ये कि जो वेरिएबिलिटी है उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है. स्टैटिस्टिकल वेरिएंस का कंसेप्ट है, ठीक है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हो कि जो मैक्सिमाइज करें आपके वेरिएंस को. इसको मैं सिंपल अल्फाज में भी समझाने की कोशिश करता हूँ आफ्टर दिस स्लाइड, ठीक है. सो हमें करना क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का जो प्रॉब्लम है, दिस जस्ट सिंप्लीफाइज this reduces to eigen value eigen vector decomposition problem, ठीक है. सो आपको eigen values और eigen vectors निकालने होते हैं आपके कोवेरिएंस मैट्रिक्स के. किस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की? जो आपका डाटा है उसका आपको कोवेरिएंस मैट्रिक्स के eigen values और eigen vectors निकालने हैं. once you have the eigen values and the eigen vectors you can get your principal components, ठीक है. सो अगर हम बात करें कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेट्स से वी हैव 100 कंपोनेंट्स, ठीक है. और उन 100 कंपोनेंट्स में इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द टॉप और द मेजर कंपोनेंट्स, लेट दीज बी 5 फॉर इंस्टेंस और 10, लेट इट बी 10. तो सिर्फ उन 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट की मदद से मैं ओवरऑल किसी भी डाटा सेट के अंदर किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है, इन 100 में से किसी भी एक इमेज को. सो बेसिकली मैं अपनी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ यूजिंग the 100 components, I'm only using the principal components. So principal, as the name suggests, principal components, जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा उसकी सबसे ज्यादा आपके पास वेरिएंस को मैक्सिमाइज करेगा, ठीक. उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, या आप यूं कह लीजिए सबसे जो पहला मैक्सिमम होगी, सेकंड के बाद फिर उससे कम होगी एंड सो ऑन. अब ये हाउ यू डिफाइन कि कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है. Unlike some other techniques where you need geometric features like the distance or the distance from the perpendicular distance from nose to eye, for instance. So
once you have the data will be actually converted into an information theory problem, और उसके ऊपर हम covariance apply करेंगे, ठीक है? We need to find out the covariance matrix of the data, and once we have the covariance matrix, we are able to find out the major components of that data, ठीक है? So let's see how we proceed with that. Basically, principal component analysis is not limited to face recognition problem. It can be applied anywhere where you need to actually analyze the data, or you need to have reduced models. ठीक है, model reduction की technique है. चलिए जी, अब इसको यहाँ पे फेस के साथ बाय द मैं कुछ रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड जो करूँ, उसके अंदर आपको मजीद डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आप पीसीए को देख सकते हैं, ठीक है? कुछ डिटेल रिसर्च जर्नल्स के आर्टिकल्स हैं, उनको आप दोज आर वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो हमारे पास, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फेस रिकॉग्निशन, ठीक है? सो फेस इस प्रॉब्लम के अंदर इनिशियली फेस डिटेक्शन इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड. सो नाउ वी हैव फेस इमेज, ठीक है? एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स आउट ऑफ दैट फेस, ठीक है जी. अब यहाँ पे फीचर्स कौन से होने वाले हैं? जैसे हमने कहा था, दो काम है पैटर्न रिकॉग्निशन में. वंस द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स, व्हाइल द अदर इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग मींस कि आपके पास ये फेस किन का है, ठीक है? दैट विल बी द डिसीजन. तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए बेसिकली हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. और जैसे वहां पे आपके पास लेंथ, विड्थ, लाइटनेस एटसेट्रा फीचर्स थे, यहाँ पे फीचर्स क्या होंगे हमारे पास? दीज फीचर्स विल बी आइगन फेसेस. What are eigen faces? वैसे बड़ा जाना पहचाना नाम आपको लग रहा होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू, दे नो अबाउट eigen values, eigen vectors. तो eigen faces are nothing but the eigen vectors of your covariance matrix. So आपको अपना जो डेटा है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद, उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेने के बाद, यू नीड टू फाइंड आउट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, और उसमें से आपने वो कंपोनेंट्स निकालने हैं जो मैक्सिमम वेरिएंस दें, ठीक है? जो मैक्सिमाइज करें आपकी वेरिएंस को. ओके, सो अब ये कैसे निकलेंगे, उसके ऊपर हम जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के जरिए से हमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलते हैं, दोज आर योर eigen faces or simply the eigen vectors. These are also called the ghost images. You will see कि आपको ऐसे like ghost कुछ images होते हैं, और ये eigen faces, let's say you have 100 images here, ठीक है? So face images for instance are 100. So अब आपने क्या करना है? आपने eigen faces select करने के, कितने eigen faces, ये कितने principal component analysis मेरे पास होने जा रहे हैं, और let these be 5. तो अब इन 5 eigen faces के जरिए मैं अपने डेटा सेट किसी इमेज को रिप्रेजेंट करता हूं बाय यूजिंग दीस प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और आइगन फेसेस, ठीक है? कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटेल मैथमेटिक्स आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी करेंगे. एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन. क्लासिफायर, तो चूंकि ये इस स्ट्रीम के अंदर हमारा पहला टॉपिक है, तो हम बिल्कुल सिंपल क्लासिफायर की बात करते हैं. यहाँ पे बहुत एडवांस क्लासिफायर्स हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो हमने बात की है, दैट इज नियरेस्ट नेबरहुड बेस्ड या यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर है. सो होगा क्या आपके पास कि आपके पास जो है एक्चुअली इनटू द स्पैन ऑफ आइगन फेसेस, ठीक है? आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, ठीक है? आपने 2D में देखा है, अगर 3D में जाएं, आप अगर डायमेंशनलिटी को बढ़ाते जाएं, तो आपके पास क्या होगा कि हर इमेज को आप वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर कॉम्बिनेशन. और फिर आपने करना ये कि जो आपका टेस्ट इमेज है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो किस डेटा सेट, यानी किस पॉइंट के, किस डेटा पॉइंट के करीब तरीन है, ठीक है? यूक्लिडियन डिस्टेंस आप यूज करते हैं, ठीक है? अगर 2D के अंदर है आपके पास, फॉर इंस्टेंस तो सिर्फ x1 x2 है, ठीक है? यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है सब, नॉर्म 2 भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है? या फिर अगर आपके पास मल्टीपल है तो x1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 x माइनस x2 एटसेट्रा, ठीक है? और उसके बाद आप स्क्वायर रूट लेते हैं. तो बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर हमने यहाँ पे यूज किया. चलिए जी, अब पीसी के ऊपर हम आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करने, बल्कि उसकी मैथमेटिक्स और फिर हमने कैसे उसे इंप्लीमेंट किया वो भी आपको दिखाने. सो हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक हियर. तो पहले दिस इज फीचर एक्सट्रैक्शन वर्कफ्लो जो हम पीसीए के अंदर देख रहे होते हैं. सो आपके पास बेसिकली फेस इमेजेस होते हैं, ठीक है? सो लाइक यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करें, I1 I2 IM क्या है?
कि आपके पास जितने भी इमेजेस हैं आपके डेटा सेट के अंदर, आपने हर इमेज को पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी एक आपकी जो पिक्चर है उसके पिक्सल है फॉर इंस्टेंस 92 बाय 112, क्योंकि जो हमने यूज किया दैट हैज अ these are the dimensions 92 by 112. So आपने क्या करना है, उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है into a column vector or in a row vector. Generally we convert these into a column vector. So I1 represents the vector representation of image 1, I2 represents the vector representation of image 2 and IM represents the vector representation of image M. ये आपके पास ट्रेनिंग का डाटा है, ठीक है, आप ट्रेन करा रहे हैं, और हर इनमें से जो आपके पास इमेज है that is of n by n dimension. तो जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि आप इसे n by n का जो डायमेंशन है उसको आप सिंगुलर, आप जो है सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, दैट बिकम्स एन n square by 1 ईच इमेज. नाउ सिंस वी हैव m इमेजेस, तो ओवरऑल जो आपके पास डाटा बन जाता है दैट बिकम्स लाइक n square by m. रिमेंबर n क्या है हमारे पास, n हमारे पास जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, 92 by 112 फॉर इंस्टेंस, या 50 by 50, सो या 50 by 100 में आपके पास 1 इज, बट डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे, चूंकि मैंने n by n यूज किया तो 50 by 50, 100 by 100, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि फिक्स हो, ठीक है, वो कोई भी साइज हो सकता है. ओके जी, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द डाटा इनटू वेक्टर फॉर्म. ओके जी, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, इस डेटा सेट के ऊपर. यू हैव टू फाइंड आउट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है, एंड वंस यू हैव द कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो आपके पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स से यू शैल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ योर डाटा. डाटा में क्या है आपके पास, जो भी आपके पास ट्रेनिंग में जितनी भी डाटा सेट है, जितनी भी इमेजेस हैं, अगर वो 400 है, अगर वो 4000 है, वो 8000 है, ठीक है. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम अप्लाई करके हाई डायमेंशनल स्पेस से लो डायमेंशनल स्पेस में आएंगे, ठीक है. रिमेंबर हमारे पास अगर ये डाटा है फॉर इंस्टेंस n square by m का, तो अगर हमारे पास m इमेजेस हैं, लेट्स सपोज 200 इमेजेस हैं, तो जब आप आइगन वेक्टर्स निकालेंगे इसके, तो देयर विल बी 200 आइगन वेक्टर्स. 200 इमेजेस हैं तो 200 आइगन वेक्टर्स होंगे, लेकिन हमने सेलेक्ट क्या करने हैं, उन 200 में से हमने वो आइगन वेक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनकी वर्थ सबसे ज्यादा है, जो वेरिएंस को मैक्सिमाइज करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है. सो वी नीड टू हैव अ सेट ऑफ k आइगन फेसेस आउट ऑफ m. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास m इज ग्रेटर देन k. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट. ओके, नाउ लेट दिस बी 200, लेट m बी 200, ठीक है जी, and let this k be for instance 12, जो कि हम एग्जांपल के यूज करके दिखाएंगे. So instead of using the 200 eigen vectors, we shall only be using the 12 eigen vectors or the eigen faces, ठीक है. अब eigen vectors कैसे निकालने हैं उसको देखते हैं, ठीक है. चलिए यहाँ पे आ जाए. तो बेसिकली ये चीजें जो आपने इंप्लीमेंट करनी है, आप पाइथन पे कर सकते हैं, आप मैटलैब पे कर सकते हैं. हमने मैटलैब पे भी किया, हमने पाइथन के ऊपर भी किया, एंड वी गेट सम वेरी गुड रिजल्ट्स. सो अब होता है क्या है कि आपके पास ये जो वेक्टर फॉर्म आती है आपके पास, अगेन फॉर वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, इफ समबडी वांट्स टू हैव डिटेल्ड डिस्कशन, माय इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द ब्रांचेस. दोनों ब्रांच के पास डाटा होगा, यू कैन ईमेल मी एज वेल, ठीक है. मे बी आज हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना ले पाए, देयर विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड, बट अगर डिटेल डिस्कशन है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं. मेरा आइडिया यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से अपने मैथ्स अप्लाई करनी है, ठीक है. उस मैथ्स को भी मैं पूरा आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है. सो नाउ आपके पास आपने तमाम इमेजेस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो आपके पास वेक्टर फॉर्म आए, ठीक है, सो आपके पास क्या है, दिस इज n square by m. सो अगर आप n square की बात करते हैं, चूंकि हम हमारा अगला जो सेक्शन है उसके अंदर हम डेटा सेट की बात करेंगे कि हमारे पास डेटा सेट कौन सा है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास जो n है, एक्चुअली जब आप करेंगे, सो वी हैव 92, दिस इज 92 by 112. AT&T का हमने डाटा यूज किया 92 by 120 by 112. जब आप इसे n स्क्वायर करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज गोना हैपन दैट दिस विल बी लाइक 10,304, ठीक है. आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो डायमेंशनलिटी है वो बढ़ती जा रही है. तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, दिस विल बी 10,304 into m, वेयर m इज द नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है. हमारे पास m क्या है, दिस m इज एक्चुअली इक्वल टू 200. So 10,304 by 200. जब इसकी आप कोवेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो कंप्यूटेशनल है वो कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है.
हम इसको यूज करके भी आइगन फेसेस को निकाल सकते हैं. सो दिस इज वन अप्रोच वन, कि हम इसके जरिए से, इस हाई डायमेंशनलिटी के डाटा के जरिए से हम आइगन वेक्टर्स निकालें और उसके ऊपर वहां से हम हाई डायमेंशनल के आइगन फेसेस निकालें. दिस इज वन प्रोसीजर. बट द इशू हियर इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर डेटा सेट अभी तो यहाँ पे आपके पास कम है, लेकिन अगर यहाँ पे पिक्सल आपके पास जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी इमेज की, तो यहाँ पे जो कंप्यूटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, नीचे हम आते हैं दूसरी अप्रोच पे कि इफ वी कैन समहाउ मूव फ्रॉम दिस हाई डायमेंशनल सबस्पेस टू लो डायमेंशनल सबस्पेस, और लो डायमेंशनल सबस्पेस में हम काम करें. ठीक है, तो किस तरीके से हम देखेंगे, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बाय लो डायमेंशनल वेक्टर. ठीक है, वेक्टर्स, और उनसे आपने लो डायमेंशनल के आइगन फेसेस निकालें. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दिस के फेसेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट. जैसे मैंने आपको बताया, लेट दिस बी 12. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट 12 आइगन फेसेस, 12 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ठीक है जी, लेकिन चूंकि हमारा एक्चुअल डेटा तो हाई डायमेंशन के अंदर है, बाय यूजिंग mapping, linear algebra mapping, we can actually move from this low dimensional to again back to high dimensional eigen faces. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो फेस है हमें उसी की डायमेंशनलिटी पे आके अपने इमेज को रिप्रोड्यूस करना होगा. सो दिस वाज अबाउट द वर्कफ्लो. और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी मैथ्स बता देता हूँ, जो स्टेप्स जो आपने अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू concatenate all your vectors. By vector I mean the image. Every image is translated into vector form. यानी I1 is vector form of image 1. ठीक है, I2 and IM. So 200 images have been concatenated in vector form. Okay, so then the next step, though, the very first step is actually taking out the information which is common in all the image, all the data. ठीक है, so mean represents that data. तो आप करते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन करते हैं अपने डेटा का. नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये कि जो कॉमन चीजें हैं उनको, कॉमन इंफॉर्मेशन को आप रिमूव करते हैं डेटा में से. दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड. ठीक है जी, सो दैट इज रिमूव्ड बाय सिंपली यूजिंग दिस ऑपरेशन. सो हर वेक्टर से आप मीन को माइनस कर देते हैं. सो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड डेटा और द नॉर्मलाइज्ड फेस वेक्टर्स. ठीक है, एंड दे आर कैरिंग यूनिक फीचर्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर basically need to find out the covariance matrix using information theory. So this is the relationship that is being used. जितने ये आइगन वेक्टर्स होते हैं, they are all orthogonal to each other. ठीक है, they are perpendicular orthogonal to each other. हर आइगन फेस जो है, हर आइगन वेक्टर जो है, it is orthogonal to the other आइगन वेक्टर और the आइगन फेस. तो आपको कोवेरियंस निकालनी है, और कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है, it is this फॉर्मूला. ठीक है, जो मेन हमारे पेपर है, दिस इज बाय टर्क एंड पेंटलेट, जिसको हमने रेफर किया है. ठीक है, सो दिस इज थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द कोवेरियंस. अच्छा जी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक. सो फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोई भी एक फेस है, वो n by n डायमेंशनलिटी है. ठीक है जी, सो वहां पे आपके पास क्या होगा, दिस विल बी देन, अगर आप n by n है इनिशियली, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है, इनटू वेक्टर फॉर्म using a single column vector. So this will be n square. ठीक है जी, so my A will be n square into m, where m represents the number of images that we have in our data set. And if you talk about A transpose, what is going to happen? This will be m into n square. So जो आपके पास फाइनल जो मैट्रिक्स निकलेगा, this will be actually n square by n square. So if you have a look, if n is equal to 500, for instance, if n is equal to 500, so this means 250,000. ठीक है, 250,000 by 250,000 matrix. And if you are interested, if you want to find out the eigenvector of this high dimensionality data, it's going to take a lot of computational requirement. ठीक है, but covariance की properties are not affected if you simply take the transpose. If you use this relationship, is the equivalent relationship. ठीक है, so हम क्या करते हैं, we use this relationship. इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास dimensionality reduce हो जाती है यहाँ पे comparatively. ठीक है, so if you have a look now, इस problem को देखें, this is very important. Now we are using A transpose into A, where A is m into n square. ठीक है जी, हायर सबस्पेस से हम लोअर सबस्पेस की तरफ जा रहे हैं. अब नाउ द ट्रांसपोज the transpose is m into n square and A is n square into m. So the resultant vector, see, the covariance matrix will be in low dimension, so m by m. So now instead of
250,000 by 250,000 matrix, you just have a 20 by 20 matrix. ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 20 by 20 मैट्रिक्स को जब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे या आइगन वैल्यूज निकालेंगे, इसको आप चाहे पाइथन से करें चाहे आप मैटलैब पे करें, तो आपके पास कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट की ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस we are actually working in low dimension, but remember we need to get back to higher dimension again by using linear algebra mapping. So I hope ये point आपको समझ में आया होगा. Okay, now what happens कि अब आपके पास m by m, ठीक है, जो हमने पीछे आया था, हमारे पास m by m का एक कोवेलेंस मैट्रिक्स आ गया. Now we need to find out the eigen vectors, and this m, there will be m eigen vectors. ठीक है जी, we shall have m eigen vectors. ये हमारे पास सॉरी m is the order. हमने क्या करना है, टोटल हमारे पास m आएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, we have to select k eigen vectors out of it. m is a dimensionality, sorry, ठीक है, this is not representing the eigen vector, k is representing the eigen vectors. So we have to find out कि हमें कितने principal components use करने. In PCA this is done heuristically. Heuristically means कि based on the data that you have to decide a number. So ठीक है, for a given data set maybe 5 components are enough or maybe 20 components are enough. ठीक है, we shall talk about this case. So once you have found the number of eigen faces, remember यहाँ पे जो आपने eigen faces use किए वो low dimensional में किए, you need to translate it back into higher dimension. And by using this relationship, this is linear algebra mapping, through which you actually translate your eigen vectors, selected eigen vectors. ठीक है, selected eigen vectors are again mapped back into high dimensional subspace. So this is n square by k again. Remember हमारे पास जो initial image था वो क्या था, initially data हमारे पास क्या था, if you remember, so it was n square by m. ठीक है, initially if हम a matrix की बात करते हैं, this was n square by m. Now we are again into the same dimensionality, so it's n square by k. So it means we shall have a vector, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होने जा रहा है, this will be the order of that matrix. So this u1, u2, uk, this represents your principal components, and these are your features. In this technique of principal component analysis, it's not about the distance between the eyes or the features of your face directly. It takes this information from the data. The good point or the point is here is that ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ face ही ऊपर लगाने. I have applied this to another data set which is not a face data set. You still get some very good information, some very good results from there. ठीक है, but finding out this k is important. ठीक है, जनरली ह्यूरिस्टिकली किया जाता है बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस. आप अपने डेटा सेट को डिफरेंट के के ऊपर चेक करते हैं इफ इट इज एबल टू रिप्रेजेंट डेटा प्रॉपर्ली. ठीक है, इसके कुछ अगर आप एडवांस रिसर्च में जाते हैं, एन एरिया कैन बी टू फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट और द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के. ठीक है, उसके ऊपर हम किसी और वक्त बात करेंगे. So okay, that's it about the finding out the features. The next part is classify. Remember अब हमने किया क्या है कि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना लिए. अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज we need to reconstruct the image. For instance, I is the image of a person. हमें करना क्या होगा, we have k eigen faces or the k principal components. Very important, this is my component 1, this is component 2, and let this be component 12. So मुझे क्या करना है, जो मेरे पास जो image जिसको मैं reconstruct करना चाह रहा हूँ, that is actually, अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखें, so if you have a look from this, just have a look. So this is just a weighted sum of eigen faces. So हर एक certain face के लिए this will be a weighted sum of and a linear combination, actually weighted sum of k eigen faces. So eigen face 1 के साथ एक w1 की वैल्यू निकालनी है, w and similarly. Now this is not w, ठीक है, this is, please make correction, this is w2 into u2. So this was just a mistake. So आपको इस तरीके से आप फिर reconstruct कर सकते हैं एक और image को. ठीक है, but remember हमने शुरू में mean value को हमने subtract किया था, so mean has to be added back again. So feature set की जब हम बात करते हैं हमें eigen faces निकालने, लेकिन actually eigen faces निकालने के बाद we need the information about the eigen faces and we also need to have the information about the weight vectors. ठीक है, this weight vector is calculated using this relationship. So you need to find out कि हर eigen face के क्या weight आने जा रहा है for each image. ठीक है, and using this mathematical relation you can find out the weight of each image. Okay, so this is shown here in pictorial representation.
पीछे आपने मैथमेटिकली देखा था. So आइगन वैल्यू, आइगन फेस 1, आइगन फेस 2, आइगन फेस 3 टिल आइगन फेस के, और हर एक की एक सर्टेन मल्टीप्लायर होगा जिसको आप उसका वेटेज भी कह सकते हैं. So W1, W2, W3 एंड WK बेसिकली. उसके बाद मीन फेस ऐड करने के बाद यू शैल हैव, एंड इन तमाम वेट्स को हम एक जगह पे कंकैटिनेट करके रख लेते हैं. दैट इज कॉल्ड माय वेट वेक्टर. ठीक है, दिस इज माय वेट वेक्टर जिसके जरिए से मैं एक्चुअली एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो हर इमेज के एक सर्टेन वेट वेक्टर होगा. सो अगर मेरे पास 200 इमेजेस हैं तो आई शैल हैव 200 वेट वेक्टर्स. अच्छा जी, द नेक्स्ट इज once the mathematics is done, you shall have the results. You shall see the results कि किस तरीके से हमने किया. ठीक है, सो आपने हर इमेज, आपके डेटा सेट में हर जो भी इमेज है उसको आपने डिफाइन कर दिया इन यूजिंग दिस वेट वेक्टर. सो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. ठीक है, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपने करना क्या है कि आपने क्लासिफाई करना है. देयर विल बी अ टेस्ट एंड दैट टेस्ट इमेज विल बी प्रोजेक्टेड. और आपने करना क्या है कि उस इमेज को कंपेयर करना है बकिया तमाम इमेज के साथ. कैसे करने जा रहे हैं? बाय कंपेयरिंग दिस वेट वेक्टर. ठीक है, सो आपने वेट वेक्टर के जरिए से इनको कंपेयर करना है कि किसका वेट वेक्टर का यूक्लिडियन डिस्टेंस डेटा सेट में जितने भी इमेजेस हैं उन सब के वेट वेक्टर्स के साथ आपने उनको कंपेयर करना है. ठीक है, जिसका मिनिमम डिस्टेंस आएगा, मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट विल बी सेलेक्टेड एज आवर रिजल्ट. सो दिस इज एक्चुअली जो काम आपने यहाँ पे शुरू में किया होगा ट्रेनिंग में, वो आप टेस्ट में भी करेंगे. लेकिन टेस्ट में आने के बाद आपके पास अगला काम क्या होगा? क्लासिफाई करने का. और क्लासिफाई आप कैसे करेंगे? बाय कंसिडरिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस. दिस इज द रिलेशनशिप. सो दिस इज द टेस्ट इमेज एंड दिस इज you are going to check it for each and every image in the data set. ठीक है, and you shall have the information about the Euclidean distance between the test image and the training image, each of the training image in your data set. ठीक है, और उसमें से जो भी मिनिमम होगा, the minimum shall be picked as the recognized image from the training data set. So this is basically what we do. Now we are done with the mathematics, by the way. Sorry अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत बोर कर दिया, but important point is not कि आपने कैसे मैटलैब पे कोड लगा के रन कर देना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ मैथमेटिकली आप उसे रिलेट कर सकते हैं. सो इंजीनियरिंग अप्रोच के अंदर जब हम बात करते हैं, विदाउट मैथमेटिक्स इट्स इनकम्प्लीट. ठीक है, वी नीड टू मेक श्योर कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो. we use different data set. If you want to work on face recognition problem, the very starting point will be to use this OR. ठीक है, AT&T का डेटा सेट है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा उनकी वेबसाइट से. मैंने रेफरेंसेस में भी प्रोवाइड किए हैं. सो देयर आर 400 इमेजेस ऑफ 40% और हर पर्सन की 10 इमेजेस हैं. ठीक है, सो आपके पास 40% है, 14 into 10 is equal to 400. लेकिन हमने 400 पे भी किए, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, दिस इज अप्लाइड ऑन 20% जिनकी फॉर्मेशन यहाँ पे. सो इट्स जस्ट रैंडम, वी यूज 20%. आप चाहें तो 40 का भी कर सकते हैं. हमने 40 के ऊपर भी अपने रिजल्ट्स निकाले हैं एंड वी वर क्वाइट कंफर्टेबल विद द रिजल्ट्स. सो आपको इनमें से कुछ इमेजेस को आपको ट्रेनिंग के लिए रखने पड़ते हैं और कुछ को आपको टेस्ट करने यूज करने पड़ते हैं. सो दिस इज द रेशियो विच वी हैव डिसाइडेड कि 70% ऑफ द इमेजेस हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, while the remaining images which have not been subjected to training shall be used for testing. ठीक है जी. Okay, so this is this का आप देख सकते हैं आपके पास वेरिएशंस हैं. ठीक है, पोस्टर की आपके पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर तस्वीरें और कुछ में आपके पास ग्लासेस भी हैं जो हम दूसरे डेटा सेट में दिखाएंगे. सो जो दूसरा डेटा सेट है जो हमने लोकली जनरेट किया, दैट इज द DSU डेटा सेट. ठीक है, द अदर इज द so we have sorry host, you should have interrupted me. I just read your message that there are participants from Malaysia who wants English medium. Host, if you can comment on this. Sir, carry on, sir. Bilingual language, sir. Thank you so much. So I initially we asked everyone if there is anyone who is not comfortable. Let's continue. So now we have two, this is our data set, the locally generated DSU data set. Again, here we used 10% data for 10%, and with the same proportion, like we used 70% for training and the remaining were used for tests. Okay, so 30 images for testing and 70 for training. Okay. Now this is, for instance, you see we tried to have variation in posture in the angle through which we took some measurements, some pictures. And if you have a look, this is interesting. अगर आप यहाँ देखते हैं ट्रेनिंग डेटा के अंदर, इन ट्रेनिंग डेटा
there is not a single person who is with glasses. So we didn't provide any information about the glasses. These glasses were not used during training, but in our test data, we used at least one image of every person with glasses, so that we see how robust our mechanism is. So this has been shown here. If you see, there are students, there are participants, some are participants, some are students, and some are faculty members. I'm extremely thankful to all these volunteers for providing us the data. Okay, Jim. So what we are gonna do, let's skip with this experimental details. Let's have a look at experimental results. So first we tested with the oral database. As I said, in oral data set, we have used data of 20%. So we had 200 images, 140 for training, and 60 were used for testing. And these are the results from the oral data. Unfortunately, we do not have enough time to run the MATLAB code and to see you in real time how we are doing it, because we are limited on time. Let's have a look at results. So this is the first part. Interesting. This is the mean. So you remember we calculated M. M was calculated as the mean. So this is the mean phase, which is actually taken out from the data initially. So this mean data is not used in order to find out the principal components. Okay. So after subtracting the mean from the data, we then find out the eigenfaces using the covariance matrix as discussed previously. So some of the principal components are shown. Have a look. Now this is what I was talking about, the ghost faces. They apparently look like ghosts, but believe me, these are not ghosts. So these are actually your eigenfaces. These represents the principal components. This means that through these, now if I say that there are five principal components are enough, it may not be enough, by the way, but if I say that 5 components are enough, then through these 5 principal components, I am able to reconstruct any image which is in my data set. Okay, so now these are some results. Have a look. So the test image and the recognized image has been shown. We have used 12 eigenfaces here. So initially we started with 5, then we moved on, we jumped to 10, 8, and then 12. And then we kept on increasing the number of eigenfaces. Now this particular result is when we had used 12 principal components. Remember, 12 is a serious reduction when you compare it with 200. Instead of using the 200 principal components, we have only used the 12 major components or the principal components or the eigenfaces in this problem. And you see the results are quite accurate. The test image have been successfully recognized. And then in some cases, obviously there will be some results. No classifier is 100% accurate. You need to train that with some more data. Here we saw that there was some incorrect results as well. So overall efficiency of around 90% or 86% could be achieved. But we shall discuss that briefly. So overall, the algorithm worked quite good. There were cases in which it did not work exactly. But this slide is very important. This actually tells you the effect of using or increasing the eigenfaces and the crux of PCA and the advantages of PCA. If you see, initially we started with the 4 eigenfaces, just 4 principal components, and we achieved efficiency of 83.3. And then we kept on increasing. So with 7 eigenfaces, it reached to 93.3, and then to 95% with 12 eigenfaces. But important point is this, as after a certain threshold, if you keep on increasing the eigenfaces, there is no effect on the efficiency of the system, because you have already selected the best components, the best principal components, the eigenfaces. Therefore, even if you increase from 12 to 30 to 30 to 60 or to 80, there is going to be no effect. Results shall remain the same, but your computational cost will increase, your computational requirements are going to increase. That we need to avoid when the data is huge. Here in this example, you could have continued like with 30 or 120 eigenfaces, but in another data set where initial data was too large, this could have been a problem. So these were the results, and these have been shown here. So how do we define success, and how do we define the efficiencies based on the results? So we had 60 in the training images, in the test. So 50 out of 10 was success. And then later you saw 57 out of 60 was success. So this is how actually PCA work. At this point, I need a break of maybe 30 seconds. Host, if you can hold on, because I need to make sure that my charger, my laptop is being charged. I would request the IEEE Heights student branch to assist me on this if they can. Please be with me.
Yes, sir. No Maybe we problem. need to, thank you. So maybe we need to relocate. Okay. So pardon us for some disturbance. So much. Thank you so much for being with me. Okay. Host, if you can connect the video, if you can please let me. So you can open now your video, sir. It apparently says the host has stopped it. Anyways, Okay, sir. I'm trying. Anyways, it's fine if we can continue even without video. Okay, so thank you so much first. Okay, now there is an important point here. Now, because of the working of the classifier, we need to understand whether there will be a match or whether there will always be a match or not. Now, what do I mean by this? Have a look. If I look at this, interesting. This is our test image, and this test image is not an image of a face. This is not a test image, a face image, but still it recognizes an image. Are you getting this point? It still finds a match. Apparently, this seems to be very weird, but this is how this classifier works. And then we need to actually overcome this problem. Okay, so we need to make sure that if the image is not face of an address that we reject. So no problem with this classifier. The important point is this: it's the working of the classifier. Why? What happens that whatever you feed as it gets projected into a space, into a vector space, and then it compares the distance from all the data, all the images in the data set. So finds the minimum distance of this test image. Let this bag be the image. This is going to be a very large value, but still it will find a minimum because this is how the classifier works. Okay, so we need to overcome this problem, and let's see how do we overcome this problem. Apparently, this may seem that it doesn't make sense. There is some problem, but as I said, it does make some sense because the classifier always finds out a minimum. वो हमेशा एक मिनिमम जरूर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि सबसे करीब अब वो करीब जिसके को भी करे वो एक्चुअली है बहुत दूर. अगर कोई आपसे यहाँ कहे कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप कराची में बात करते हैं, कराची में जर्मनी से कराची या न्यूयॉर्क टू कराची या आप फ्रॉम रशिया टू कराची, देयर इज गोइंग टू बी अ मिनिमम, ऑल्दो कि तमाम डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट मैथमेटिकली देयर विल बी अ मिनिमम. So you need to apply some thresholding, ठीक है, जिसको हमने मैच प्रूनिंग एल्गोरिथम का है. So what we do is we define a threshold. If the Euclidean distance is greater than that threshold, then that means that needs to be rejected. That means that face image is actually does not belong to our data set, does not belong to face image, or needs to be rejected. ठीक है जी. So as you can see, initially यहाँ पे आपके पास incorrect matches without match pruning algorithm, without thresholding. But once you do that, what happens is that these images are rejected. If you have a look, this test image, although you may be a bit confused that this is a face image, but still it is being rejected. But the point here is this, that this face image of a student does not belong to AT&T data set. Okay, so this belongs to DHS of a student data set. If the person is not in the data set, you have to reject that data face. Okay, for instance, for some supervisory control, if the person does not belong to authorized person, that person should not be allowed. Okay, so therefore this image has also been rejected as it should have been done. So this is the process of our match pruning algorithm. What we do is we first find, we continue with the same process. Okay, we compute the Euclidean distance between the test image and each of the face image. And if the distance is less than threshold, we accept it. Okay, if the distance is less than threshold, we say yes, then output face is recognized. But if the distance is not less than threshold, it's greater than or equal to threshold, then that output phase is actually being rejected. And then you can see we
after applying this mechanism, there will be some false positive, there will be some false negatives. Okay, that needs to be proper. So this threshold needs to be properly. You need to make sure that the threshold has been tuned properly. If it is not tuned properly, then there are chances that there will be some false positives or there will be some false negatives. So this is overall result which we tested. So the oral data set were used non-face images, mean images which do not belong to a face. We checked with some other face images. We checked with some other oral non-face space images. Overall result was quite good. So somewhere around 90%. So this was actually how we did it. The experimental results you have seen. And exactly, I will be skipping this, or I will be just quickly moving along because we are running out of time. Same was done for DHIS-SOFA data set as well. And here you can see similar results were obtained. The important point here is that we have used K is equal to 12. So 12 eigenfaces were being used. And the similar kind of results were obtained here as well. Okay. And before thresholding and before match pruning, these images, these mean negative, but here you see the images which do not belong to the given data set have been successfully rejected. So the top two are actually do not belong to a face space. किसी भी चेहरा नहीं है ये किसी का. This is not a face, have been successfully rejected. जबकि अगर आप नीचे देखते हैं तो these are face images, but they do not belong to the DHIS-SOFA data set. These are from the AT&T data set and therefore needs to be rejected. So this was all about principal component analysis. Conclusion यहाँ पे आपको provide कर दिया गया है. The point is you need to find out the principal components. You need to find out the eigenvectors. You need to find out the eigenvectors. And once you have found out the eigenvectors, after that, you need to classify your system. ठीक है? So कुछ mathematics है जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है. I hope ये आपको बेहतर लगी होगी या कुछ चीजें समझ में आई होगी. PCA का काम हमारे पास खत्म हो गया. बेसिक आज का जो हमारे पास टॉपिक था that was principal component analysis. लेकिन हमने इसे डीप लर्निंग के ऊपर भी अप्लाई किया है. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, we are not going to into the details of deep learning. I would just like to introduce you to motivate you to work on deep learning and some other techniques. I would request my co-researcher, Miss Erin, to continue with this. Host, if you can please let Miss Erin present. And then maybe after that we can have the session. Thank you so much from my side. Yes, Erin, you can carry now. Kindly allow me to share my screen. Sir, kindly. Yeah, sure. So, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Erin Imran Jalal, and today I will be discussing the second approach which we have used, which is basically convolutional neural networks, or CNN. And this is an approach used for facial recognition. Erin, if you can maximize slide view. Yes, yes, sir. So I'm just going to share the workflow of our CNN algorithm, which we have used. As we all know that first we need to acquire the image. That is, image acquisition is an important step in the face recognition algorithm. After acquiring the image, we first need to detect the faces in the face image. All the faces in the face image needs to be detected. And for that, we have used HOG, or histograms of oriented gradients, so that face images can be easily, or faces can be easily extracted from from an face image, right? After acquiring the faces, we basically calculate, or we basically generate 128D embeddings. Now, what are the 128D embeddings? 128D embeddings are simply 128 real valued numbers, which basically represent a face image. So for every face image, there will be a unique 128D real valued feature vectors, which will basically represent that face. After that, an important process is to basically train the faces. For training, we have used a triplet loss function. I will be explaining the triplet loss function in the next slide. For the face recognition, we have used KNN classification. KNN classification basically works on finding the minimum Euclidean distance, as already it was discussed by Sir as well.
but we are basically calculating the minimum Euclidean distance between the face in the training images and the faces in the test images. After that, in order to make our recognition process more strong, we are basically using some maximum vote count. Maximum vote count basically allows us to find the face which has the most number of votes so that we can specify that this is the recognized face. After getting the recognized face, we basically just mark the attendance. Now, this workflow is for an attendance system, an application of face recognition algorithm. Therefore, I have specifically mentioned that attendance will be marked for all the students which are present in the class. And after that, we have also added a feature of delivering emails to the students or the class participants which are present in that class. Now, in order to work on recognition, we have used two main libraries, and installing these two libraries is very important if we are aiming towards the convolutional neural network-based facial recognition algorithm. For that, we are using two libraries, which is face recognition library and the DLib library. Now, DLib library is basically important and the most important library which plays a part in the generation of the face embeddings. And face recognition library supports the DLib library so that it can work properly. Now, this is the triplet loss function which I was talking about in the previous slide. As we can see from the example, the triplet loss function basically aims on minimizing the Euclidean distance between the anchor and the negative, anchor and the positive image. Here, anchor is this image and the positive is this image. So basically, as you can see, the distance between these two images seem to be smaller as compared to the distance between this anchor and this negative image. So basically, triplet loss works in a manner of reducing the distance between these two images and increasing the distance between these two images. So that's how training is basically done on our convolutional neural network algorithm. Now, this is the 12080 embeddings which I was talking about. As you can see, it is simply a list of real valued numbers, which basically represents the identity of it, which basically represents this image in particular. After that, the data set which we have used for our CNN algorithm is a sample of the training data set can be seen. We have basically worked on 10 persons, and each for every person we are using 100 images for the training. So we have a total of 1,000 images which are being used for the training data set. For the testing, we are using group photos, and this is basically a sample of our test data set. Now, the experimental results are generated in such a manner that we are basically varying the tolerance parameter process stricter or smoother. Now, if we decrease the tolerance value below a certain optimum value, it is seen that the percentage of recognition or the results are, it seems to be getting lesser. And if we increase the tolerance value above certain value, it is seen that the results also seem to get poorer. So we have to select a certain optimum threshold value which is suitable in order to generate the best results. And for that, we have found out a value of 0.4. And we can see that we are getting a percentage recognition of 94.17, which is close to 95%. Now, generating the results, we can see that at tolerance value 0, we are getting all unknowns, even though the data set of these people is already included in the training data set. But still, putting a tolerance value of 0 results in all unknowns. Increasing it to 0.4 basically results in correct recognition for the people present in the training data set, and increasing it further to 1 in correct recognition. Basically, the concept of false positives and false negatives can be seen here, which has already been discussed by Sir Owais. So, increasing the tolerance value to a value greater than the optimum results in more false positives, that is incorrect recognitions, whereas decreasing it below an optimum results in false negatives, which is the incorrect rejections. Now, as I've already told you that there are multiple
there are multiple applications of the facial recognition system, but we have used it specifically for the smart attendance system. And it is known that attendance in most of the institute basically practiced manually on LMS, and teacher have to call out the role of each and every student in order to mark their attendance. But with the help of our system, the process is basically more smoothed out, and the time is also less time is consumed. These are the experimental results. Further, as I've already told you, that we have been working on generating the emails for the participants present in the class. So it can be seen that for this particular image, Erin, Amara, and Muiz, which were correctly recognized, their name they have already been mentioned in the emails and have been sent to all the class participants. Similarly, it can be seen that for this image, Hamad, Moon, Shahir were present in this image, and they are correctly recognized. So this is basically, I'd like to acknowledge the Department of Electrical Engineering, the Safa University, Sir Anas bin Iftikhar, and also all the DSU volunteers, which basically helped us in getting the biometrics and helped us in volunteered in order to collect the data set and basically the references. So thank you from my side. This is all. Over to you, Sir Uwais. I think it should be over the host. Thank you so much, sir. We will now like to present a little token of appreciation. Wait. Can you hear? Can you see my screen? We will now like to present a little token of appreciation for our esteemed speaker on behalf of all our participants and our entire organizing body. We would like to thank you humbly for joining us today and giving us for your time. It was an honor for us. Thank you so much, sir.